ठीक है, तो शुरू कर देना। तो फर्स्ट वाज कमेंट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल। So the preamble is the identity card of the constitution, as stated by Palkhiwala. It is the vision of the constitution maker and the guiding light in which the constitution has to be read. The preamble has its genesis from the objective resolution presented by Pandit Nehru in the Constituent Assembly. So it was further modified by Indira government by the 42nd Constitutional Amendment Act, which added the words socialist and secular. The existence of preamble as a judicial legal instrument varied as first in the Berubari Union case, Supreme Court held that preamble is not the part of constitution. However, this view was reversed in Keshwanandan Bharti case, 1973, wherein Supreme Court held that preamble is the part and not the guiding light to interpret the constitution. The preamble starts with the phrase "We the people," meaning the people of the country have created it. Uh, Created the constitution for themselves. Then it talks about the nature of Indian polity, that is sovereign, so sub sovereign, socialist, secular, democratic republic. Then the preamble talks about the value system that the constitution aims to establish, which is justice based on social, economic, and political, liberty of thoughts, beliefs, and worship, equality to all of status and opportunity, fraternity, that is promoting a feeling of brotherhood. Yeah. Uh, the Supreme Court in Keshavanandan Bharti case held that the preamble forms the basic structure of Indian constitution, which cannot be changed by the parliament. So, as Pandit Thakur Das has said, preamble is the soul of constitution and it lays down the aim and objective of the constitution for the layman in a simplistic manner. ये था। ट्रेडिशन कराएंगे किसी को इसमें। यार ये लग तो जीएस जैसा ही रहा है, मतलब कुछ पॉलिटिकल साइंस का कुछ। और वो भी बता मतलब और भी मतलब मुझे तो फैक्चुअल भी गलत है यहाँ पर, ये सोशलिस्ट सेक्युलर के साथ इंटेग्रिटी 3 वर्ड डाले थे उन्होंने। हम्म। साथ साथ सिग्निफिकेंस बताना है ना। हम्म। सिग्निफिकेंस क्या है, वो जो कीवर्ड डाले हैं वहाँ पे आपने, उसमें वहीं पर कुछ उनका सिग्निफिकेंस बताओ कि इसकी वजह से ये हुआ सोसाइटी में, इसकी वजह से ये डिमांड हुई, जैसे इंडिया इज वेलफेयर स्टेट। अच्छा। अच्छा, मीनिंग क्या है मतलब उसका, सोशली कोई सिग्निफिकेंस बताओ। जैसे ये तो है कि सेक्युलर है तो इंडिया कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कुछ है क्या? सोशलिज्म का कुछ है क्या, डेमोक्रेटिक का क्या है कुछ, मतलब वही ये सिग्निफिकेंस इनके फॉर्म में डाल सकते हैं अगर, वैसे स्कॉलर भी तो पता नहीं कुछ कि, और देख लो किसी से। समीप आ गया है। ठीक है, तो मतलब वो कुछ पॉलिटिकल पॉइंट्स डालने चाहिए था। हम्म।
कोई पॉइंट है क्या और किसी के पास? यार ये क्वेश्चन 1 है क्या? हाँ, क्वेश्चन 1 है। अच्छा, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे तो थे। मतलब मैंने उसको मोस्टली इससे ही लिया था, लक्ष्मीकांत से। मैं उसको ग्रुप पे डाल देता हूँ, वो देख लेना एक बार। और ठीक है, मतलब ये वाले पॉइंट्स भी अच्छे हैं, बट लक्ष्मीकांत में आई गेस ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स दे रखे हैं ऑलरेडी। जो कुछ तो इसने डाले भी हैं शायद बेरोबारी, मैं पूरा नहीं पढ़ पाया असल में, बट मेरे को थोड़ा समय दे, मैं डालता हूँ एक से। अभी हम आगे चलेंगे। आई थिंक आगे चलते हैं। हाँ, आगे चलते हैं, ऑलरेडी 15 मिनट हो गए। मैं डाल देता हूँ, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ऐड ही करेगा इसमें। वरुण, आपने लिखा है ना? किसी पढ़ो ना, मैं बाहर हूँ। To explain the significance of freedom of speech and expression from efficient functioning of democracy. To what extent the reasonable restriction in the name of contempt of court and defamation, as mentioned in the Article 19.2, put the burden of exercise of this freedom in India. Freedom of speech and expression is placed in the Part 3 of the Constitution. In violation of this claim, he can approach judiciary for justice. J.S. Mill, who is regarded as the prophet of freedom of speech and expression, considered this is a gift of God to human and a natural right. Constitution under 19(1)(a), which provides for the freedom of speech and expression, is placed by the influence of क्रियल लॉ, क्रियल लॉ, बोला? क्रियल Civil law. क्रियल लॉ। Okay. Such as British cruel laws such as Vernacular Press Act, Sedition Act, and Official Secret Act. Provide liberty which help in development of men to his fullest. Immanuel Kant also emphasized that it protects the dignity of human being. It protects the dignity of human being. Although it is a natural right, but not absolute, and Constitution under 19(2), which ensures reasonable restriction, this freedom do not disturb stability and integrity of the nature. Sorry, State if it nation. feels It has to be nation. nation. State if it feels speech and expression is threat to dignity, public morality, national integrity, and contempt of court. Contempt of court, which is placed under 129, Article 129. Article 129, in Disobedience disobedience, to disobedience to code and scandalizing the code, thus ensure independence of judiciary. Issues with contempt of court, which is vague, violate the principle of natural justice. In Malgaonkar case 1978, rest set guidelines by the court and suggests judge should not be hypersensitive. And further, Prashant Bhushan case balance between criticism and judicial independence. Similarly, defamation is the communication of a false statement that harms the reputation of an individual, person, business, and product group or nation. product, group, or nation under Section Section 499 and 500 of IPC.
Rawls was in the view that liberal society provides freedom of speech and expression, resulting in plurality worldviews which may even be incompatible. Supreme Court in Ramesh Thapar versus State of Madras held that uh, right of speech and expression, and here lays the foundation of the democratic organization without political disturbance and necessary for the proper functioning of popular government. And similarly, in Indian Express versus Union of India case, and Law Commission in its 200th report. Law Commission in its 200th report, Free Speech versus Fair Trial, suggested amendments to the Contempt of Court 1971. Further, in Kanhaiya Kumar case, Supreme Court led condition only if leading to violence. Thus, Supreme Court is trying to ensure freedom of speech and expression in equal manner to curtail arbitrary rule of government. For a democracy to be competitive and fault-free, freedom of speech and expression is needed, and it is the cornerstone of democracy. Ambedkar. अब यार इस पे ऐड करना है क्या किसी को इस पे? मतलब यार यही सेम चीज़ मतलब वही मेरा फिर से वही डाउट है, अपन जीएस में भी यही आंसर लिखते, तो एग्जाम्पल दे करके वो सब करके, तो किसी के पास कुछ है ही नहीं क्या, मतलब व्यू बोल रहा था कंटेंट को, कुछ किसी का एनालिसिस नहीं है, किसी ने इसका एनालिसिस किया नहीं है क्या अपने कॉन्स्टिट्यूशन राइट? क्योंकि मैम ने तो कुछ लिखवाया नहीं है, मैम ने तो पता नहीं ऐसे छोड़ दिया कि तो जीएस में है, लेकिन फर्क आना चाहिए, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है ना, मतलब नोट्स भी नहीं दिए कोई प्रिंटेड, किसी के पास हो तो कुछ बताओ। Like I have an idea putting James Mill like reluctant Democrat, but I thought it would be very aggressive to this answer, like No, but because it should be in correlation, no, like एक लाइन दूसरे से रिलेट होनी चाहिए, like just putting the points लग रहा है मेरे को, कनेक्टिविटी थोड़ा मिसिंग लग रहा था स्टार्टिंग में। actually question was so big that I took one page to like three. I made it into three parts, like for FOSE one page, and then like contempt of court, and then defamation, and then with explaining those cases and relevance, like that. एक्चुअली आई गेस मिल्स वगैरह डालने को डाल सकते थे, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे जो मिल्स ने बोला है ना, इफ ऑल मैनकाइंड माइनस वर ऑफ वन ओपिनियन ओनली वन पर्सन और द कॉन्ट्ररी ओपिनियन, ऐसा करके कुछ। तो इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से पहले तो ऐसे ब्रेनस्टॉर्म कर लेना चाहिए कि क्या क्या डाल सकते, कौन कौन से स्कॉलर्स हैं जिनने डायरेक्टली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में कुछ ना कुछ बोला है। आई गेस हेबरमास का भी कॉन्सेप्ट है कम्युनिकेटिव एक्शन और आइडियल स्पीच सिचुएशन वाला, तो वो मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद है कि क्या था वो। एक तो आइडियल स्पीच सिचुएशन में वो याद है मेरे को, जो मैंने भी अपने आंसर में लिखा था कि कोअर्सिव, मतलब आइडियल स्पीच सिचुएशन वैसी होनी चाहिए जहाँ पे फ्रीली लोग डिस्कस कर सकें चीज़ों को, तो वो भी यहाँ पे कैसे तो भी डाल सकते हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ये रिस्ट्रिक्शन डाल रखा है इनने, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और डिफेमेशन, वो एक तरह से जिस तरह से कोर्ट या बाकी इंडिविजुअल्स उसको एक्सरसाइज करते हैं, इट स्टार्ट्स इन्फ्रिंजिंग अपॉन दैट फ्रीडम, तो वो आइडियल स्पीच सिचुएशन को एक तरह से वो हैम्पर करता है। ऐसे करके वी कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ स्कॉलरली व्यू देयर, बट वही है, मेरे को हमेशा वही डाउट रहता है कि एप्लीकेशन सही होना चाहिए। जैसे इसने जेएस मिल तो डाला है, जेएस मिल तो आना ही चाहिए, वो तो डायरेक्टली आएगा। वरुण ने भी डाला है तो वो तो ठीक ही है।
बट आगे बाकी केस लॉ वगैरह में भी जो टर्मिनोलॉजी वर्ड्स वगैरह अगर कोर्ट अगर यूज़ करता है ना, जस्टिस लिबर्टी वगैरह से रिलेटेड, तो वो सब वो सफिशिएंटली पॉलिटिकल साइंस का आंसर होता है। तो मतलब उसमें वो सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमको कि जीएस जैसा ना लगे। बाकी पैराग्राफ में तो लिख ही रहे हैं। पैराग्राफ में वही है, थोड़ा सा फ्लो का देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आई थिंक फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। I refer to Subramanian Madam's previous uh, uh, papers like 2017 like that, but she also mentioned uh, this judgment in her paper. आपका है नहीं वाला। हाँ मैंने लिखा लिखा। Comment on the significance of right to internet as fundamental human एंड right ह्यूमन and फंडामेंटल एंड ह्यूमन राइट एंड इट्स चैलेंजेस। तो वो सबसे पहले तो राइट टू इंटरनेट को बता दिया कि क्या है, कि एक्सेस टू इंटरनेट in order to exercise enjoy their rights to freedom of expression and other fundamental rights। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अभी साबू मैथ्यू जॉर्ज केस था 2018 का, उसमें डिक्लेयर्ड राइट टू एक्सेस इंटरनेट एज बेसिक फंडामेंटल राइट। फर्दर इट हैज आल्सो बीन recognized by UNHRC in a non-binding resolution that the same rights people have offline must also be protected online। उसके बाद आई हैव शिफ्टेड टू सिग्निफिकेंस ऑफ राइट टू इंटरनेट एंड बेसिकली उसको एनालाइज किया इन रिस्पेक्ट टू हाउ इट इज इम्पोर्टेंट इन रियलाइजिंग अदर फंडामेंटल राइट्स। तो अनुराधा भसीन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि इंटरनेट इज एन इंटीग्रल एस्पेक्ट टू रियलाइज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a)। एंड वैसे internet also represents the ideal speech situation in Habermasian terminology, which provides a situation of democratic communication with equal opportunities for social actors to communicate, hence an important platform to promote deliberative democracy. It also provides a platform to hold government accountable, thereby upholding right to development, which is recognized by UN General Assembly as one of the third generation rights। ठीक है, फिर फर्दर इन एन एरा ऑफ ई कॉमर्स एंड फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, internet access is important to realize the freedom of trade and commerce as provided in article 119(1)(g। फिर 2013 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी बोला है कि इट हैज द पोटेंशियल टू एक्सेलरेट ह्यूमन प्रोग्रेस। तो वैसे करके सिग्निफिकेंस बताया, बट उसके बाद क्रिटिसिज्म में है कि हाउएवर क्रिटिक्स लाइक विंसेंट सर्फ हैज आर्ग्यूड दैट इंटरनेट इज मेयर एनेबलर ऑफ राइट एंड नॉट अ राइट इन इटसेल्फ। फिर उसका बेसिकली ये कहना था कि अपन फालतू ओवर प्रायोरिटाइज कर रहे हैं इंटरनेट को, वो खाली एक इनेबलर ऑफ राइट है। तो अपने आप में राइट बोलने से हम अपनी प्रायोरिटीज को मिसप्लेस कर रहे हैं, ऐसा उसका बोलना था। फिर फर्दर इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट इंटरनेट हैज फैसिलिटेटेड terrorist organizations, inflamed hostilities, and deepened divisions in society. It creates echo chambers that further leads to political polarization. Also, the issue of digital divide can further exacerbate the existing socio-economic inequalities। Lasky has said, to conclude किया कि Lasky has said state is recognized by the rights it maintains। So in the backdrop of pandemic, where the interaction between individual, civil society and state is increasingly dependent on internet, it becomes important for state to recognize internet as fundamental right to uphold the preambulatory promise of justice, liberty and equality। ऐसे करके कंक्लूड किया था, बट मेरे को ऐसा लगा कि शायद कंक्लूजन मैंने थोड़ा सा एकदम प्रो लिख दिया है, उसमें कहीं कुछ प्रोपोर्शनैलिटी वाली चीज लानी चाहिए थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी था, कोई क्वेश्चन में भी चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म टाइप का दिया हुआ है।
ऐसा मेरे को लगता है। बाकी फिर तो और कोई पॉइंट्स अगर ऐड कर सकते हैं तो वो बता दो। एग्जाम्पल्स मेरे को लगता है एग्जाम्पल्स नहीं डाले मैंने, बहुत सारी जगह एग्जाम्पल्स डाल सकते थे। अभी पढ़ते टाइम मेरे को समझ में आया, वो कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला एक एग्जाम्पल डाल सकता है, अरब स्प्रिंग हो गया, वहाँ पे हैशटैग मी टू मूवमेंट, उस तरह से काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ राइट टू इंटरनेट। को अपन लाइवलीहुड से भी रिलेट कर सकते हैं। तो जो जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, उसमें लाइवलीहुड भी आता है ना, तो आर्टिकल 21 से रिलेट कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग केस बन जाता है फिर फंडामेंटल राइट बनाने के लिए। हाँ उसको, ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स वाला एक पॉइंट डाला था मैंने, तो उससे रिलेट कर सकते हैं क्या कि उसके आगे। हाँ वैसे आर्टिकल 21 में भी ओल्गा टेलिस वाले केस में राइट टू लाइवलीहुड वाला बोला है अलग से, इट इज पार्ट ऑफ राइट टू आर्टिकल 21 करके। एक्चुअली क्या है ना, इसमें इंटरनेट कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स को प्रमोट करता है, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन कम अप विद अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, थोड़ा सोचा तो। बट एग्जाम में आपको मतलब कहीं ना कहीं उसको लिमिट करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करने पड़ेंगे पॉइंट्स, क्योंकि सारे तो लिख भी नहीं पाएंगे। तो वैसे अगर करना है तो मेरे ख्याल से जैसे बोला था कि इट इज अ फंडामेंटल एंड ह्यूमन राइट। हाँ, पता नहीं यार, एक सेकंड में। केस का नाम का याद नहीं है, लेकिन फिर हाईकोर्ट का था। हाँ वो केस का नाम था फहीमा शिरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो उसमें हाई कोर्ट ने तो बोला है कि राइट टू इंटरनेट एक्सेस इज अ फंडामेंटल राइट, बट एक और ये केस मैंने डाला था, साबू मैथ्यू जॉर्ज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने बोला है कि राइट टू एक्सेस इंटरनेट इज अ बेसिक फंडामेंटल राइट। तो ये तो मतलब बोला तो है सुप्रीम कोर्ट ने कि फंडामेंटल राइट है। और अनुराधा भसीन केस में उसने बोला था कि वो एक तरह से इनेबलर है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और ट्रेड एंड कॉमर्स का। इट इज द मीडियम ऑफ इंटरनेट, फ्रीडम ऑफ स्पीच टू द मीडियम ऑफ इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट। बट वही है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था कि रिस्ट्रिक्शंस जस्ट लाइक नाइन, मतलब बाकी के जो फंडामेंटल राइट्स है ना, लाइक दे आर सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, वैसे ही दिस राइट कैन ऑल्सो बी सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो मेरे को ऐसा लगता है मैंने वो वाला पॉइंट कहीं ना कहीं मिस किया है, उसको आना चाहिए था कंक्लूजन में, या नहीं तो कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल होता है राइट जो भी है, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट कोई सा भी राइट। और एक चैलेंजेस में एक एक वो कंसेप्ट आता है ना कि इंटरनेट को, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा होता है ना कि प्रेफरेंस देते हैं इंटरनेट को, कुछ वेबसाइट्स होती हैं या फिर कुछ ऐसा डोमेन नेम होता है जो जिसको मोर प्रेफर करते हैं, इंटरनेट स्पीड बढ़ा देते हैं उसकी, क्या बोलते हैं उसको, रिजर्व, किसी को याद है नेट क्या वो? न्यूट्रलिटी। राइट राइट, इंटरनेट न्यूट्रलिटी, ये एक भी चैलेंजेस है इसमें। तो बोला है ना, मतलब किसी ने गाइडलाइंस तो रिलीज करी कि भाई ऐसे, मतलब किसी ने किसी केस में ऐसा बोला है कि इंटरनेट न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, मतलब एक चैलेंज के उसमें आता है ना, चैलेंजेस बताने ना उसमें कि इंटर राइट टू इंटरनेट इज सिग्निफिकेंस एज वेल एज चैलेंजेस, तो इंटरनेट न्यूट्रलिटी करके एक चैलेंज आता है इसमें।
मतलब न्यूट्रलिटी क्या बोलते हैं, प्रेफरेबल है ना, हर किसी के लिए बराबर इंटरनेट की एक्सेस होना चाहिए। हाँ, नेट न्यूट्रलिटी वैल्यू है। और उसको वैसे जो संजय कह रहा है कि उसको यहाँ पे लाना थोड़ा सा, मतलब कैसे लाएंगे वो क्लियर नहीं हो रहा है, वो थोड़ा बता दो। और थोड़ा सा उसको नेगेटिव ये होता है ना नेट न्यूट्रलिटी को, मतलब वो बोलते न्यूट्रल है लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जब होता है तो पार्शियल एक्सेस मिलता है उसमें, उसके अंदर। हाँ, तो मैं उसी सेंस में बोल सकते हैं ना कि अगर आप फंडामेंटल राइट इसको बता रहे हैं तो फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, इक्वली एप्लीकेबल होते हैं टू ऑल। लेकिन नेट न्यूट्रलिटी के केस में क्या हो जाएगा कि उसमें ये जो वायलेशन होगा फंडामेंटल राइट का, अगर इसको इंश्योर नहीं कर पाते न्यूट्रलिटी को, तो न्यूट्रलिटी कैन बी द चैलेंज फॉर दिस फंडामेंटल राइट। मेरे ख्याल से क्वेश्चन जो बोल रहा है ना वो है कि राइट टू इंटरनेट को अगर फंडामेंटल राइट बनाते हैं तो क्या चैलेंजेस होंगे। तो मतलब अगर फंडामेंटल राइट बनाने से क्या चैलेंजेस होने वाले हैं वो है कि जैसे इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज हो सकते हैं फंडामेंटल राइट को अगर क्या कहते हैं रिकॉग्नाइज किया है, सर राइट टू इंटरनेट को फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज किया था वैसे वाले कि रिसोर्सेज हैं कि नहीं हमारे पास उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। हाँ। I think हाँ, ops का ले गया था न्यूज़ में, करेक्ट करेक्ट। अरे वो ये इंडिया का जो वो देख सकते हैं ना, अभी आईटी लॉ से कंप्लाई नहीं कर रहे थे। बेसिकली टसल के बारे में नहीं बोल रहा है क्या कि फंडामेंटल राइट आपको प्राइवेसी के इसमें रहेगा, लेकिन क्योंकि स्टेट को सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ती है तो उसके लिए वो उसका एक हर्डल हो सकता है। हाँ, तो वो भी एक चैलेंज के रूप में डाल सकते हैं हम वहाँ पे कि उसके अगर आपने राइट दे दिया बट अल्टीमेटली उसको रिकंसाइल करने के लिए कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं कि जस्ट बिकॉज इट हैज चैलेंजेस डजंट मीन इट शुड नॉट बी अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जस्ट लाइक एनी अदर फंडामेंटल राइट शुड बी सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो ऐसे करके वी कैन कंक्लूड चैलेंजेस तो वो सही है कि अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है इंटरनेट से, तो उसी के थ्रू चैलेंजेस आ रहे हैं। तो जैसे एक संजय ने बोला कि सोवरेंटी वाला पॉइंट है, सोवरेंटी का इशू है, देन जनरल स्टेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी का इशू है। तो ये सब चैलेंजेस हैं, तो इसको एड्रेस कर सकते हैं, मतलब बता दो कि ये चैलेंजेस हो सकते हैं बट दे कैन बी एड्रेस्ड ऑल्सो। तो आई गेस स्ट्रक्चर में यही ना कि हम शुरुआत में थोड़ा सा राइट टू इंटरनेट का बता दें, देन सिग्निफिकेंस बता दें अलग अलग पॉइंट्स पे, देन चैलेंजेस विथ एग्जांपल्स, और कंक्लूड कर दें लाइक फंडामेंटल राइट होना चाहिए विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ये ह्यूमन राइट के कॉन्टेक्स्ट में इंटरनेट को किसी ने कुछ बोला है क्या? ये दो तीन चीजें तो मैंने ही डालती थी वहां पे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, मेरे को स्कॉलर नहीं मालूम है, स्कॉलर तो किसी ने कुछ बोला है कि नहीं पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हैं, एक जजमेंट हाई कोर्ट का है, केरला हाई कोर्ट का। यूएनएचआरसी ने रिकॉग्नाइज किया है, एसडीजी में भी रिकॉग्नाइज्ड है। हाँ, उन्हीं का बोल रहा था, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर ही बात कर रहा था। और यूएन जनरल असेंबली ने जैसे राइट टू डेवलपमेंट बोला है, थर्ड जनरेशन राइट, तो उसके लिए भी इंटरनेट इम्पोर्टेंट है। वो मेंशन किया है ना। हाँ, वो वाले तो पॉइंट्स डाले मैंने। हाँ, तो एक्चुअली क्रक्स भी होना चाहिए क्योंकि अपने को पता होना चाहिए कि ये सिचुएशन जो अभी तक चल रही है उस मतलब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है और ये इंटरकनेक्टेड हो गए हमारे इंडिविजुअल्स, तो राइट टू इंटरनेट इसलिए बेसिक राइट हो जाता है उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और उसके लिए। तो वो बता के फिर आपको बताना पड़ेगा, इसलिए इवन इफ विद द चैलेंजेस रिफॉर्म इज नीड ऑफ द आर ऐसा कुछ करके, तो रिफॉर्म does present itself with both its utility and challenges. There is a need to mitigate the challenges and increase the its benefit, ऐसा कुछ करके अपन end कर देंगे जैसा आपने बताया वैसे। हाँ राइट, मेरे ख्याल से पैंडेमिक के कॉन्टेक्स्ट में वो और इम्पोर्टेंट हो गया राइट टू इंटरनेट ना, कि अब एक सडनली सब कुछ ही सोशल डिस्टेंसिंग और क्वारंटाइन उस पर चल रहा है,
तो फिर इंटरनेट के थ्रू ही बाकी सारे राइट्स को रियलाइज किया जा रहा है। राइट टू एजुकेशन का भी जैसे एक पॉइंट था। क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट का कुछ एक डॉक्ट्रिन होता है ना, जिसमें फंडामेंटल राइट और इसमें कुछ करते हैं, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन रहता है ना, हार्मोनियस डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। तो वही अपन बैलेंस का एक क्राइटेरिया सेट करना चाहिए, ऐसे आर्बिट्री नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ मेंशन कर सकते हैं। हाँ, अल्टीमेटली वही है कि कंक्लूजन में कि पैंडेमिक के कॉन्टेक्स्ट में इट इज इम्पोर्टेंट कि राइट रिकॉग्नाइज होना चाहिए, बट इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड विद वही जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं। आप डीपीएसपी का क्या बोल रहे थे, राइट टू एजुकेशन में? नहीं, वो वर्ड पूछ रहा था कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन जो वर्ड था वही पूछा था ना पलाश। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिवाइस किया है ना दोनों के बीच में, तो इस कंटेक्स्ट में वो शायद रेलेवेंट हो जाता है। हाँ, वो अल्टीमेटली वही है कि हर जगह पे ही वो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन और जो बैलेंस है वो करना पड़ता है कि फिर वो फ्री, जो पिछला क्वेश्चन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था, या जो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं राइट टू इंटरनेट एक्सेस है, इवन रिलीजन के राइट्स में भी यू हैव टू बैलेंस इंडिविजुअल के राइट्स और कम्युनिटी के राइट्स, तो वहाँ सब डाल सकते हैं। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन है, कमेंट ऑन राइट टू प्राइवेसी इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन पुट्टास्वामी केस 2017 डिक्लेयर्ड राइट टू प्राइवेसी इज एन इनएलिएनेबल एंड इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21. So Supreme Court defines the right to privacy as a right to be left alone to live one's own life. It also includes rights against interference with one's private life, public family life and home life, as well as attack on one's honor and reputation. मतलब कि पहले वही थोड़ा सा राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी का ही मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया है कि वो कौन से केस में आया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैसे डिफाइन किया, और आर्टिकल 21 में उसको बोला सुप्रीम कोर्ट ने। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बताया कि इसका पीछे क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना व्यू लिया, कौन कौन से, तो वो बोलते हैं कि यूएस की जो पोजीशन है उन्होंने उसको कंसिडर किया, एज वेल एज आर्टिकल 8 ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, जो कि राइट टू प्राइवेसी को डिफाइन करते हैं। तो वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑफ यूएस पोजीशन एज वेल एज आर्टिकल 8 ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स विच डिफाइंस राइट टू प्राइवेसी एंड असर्ट इट एज अ नेचुरल राइट। तो वहाँ से जो थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट से वहाँ पे जोड़ा है मैंने कि जो जॉन लॉक का जो पर्सनल लिबर्टी है वो भी कहीं ना कहीं उसी थ्योरी से होती है। और एक ये बुक मेरे को मिली थी, खैर ये थोड़ा फैक्ट लग रहा है, लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको ऑमिट भी कर सकते हैं अगर मतलब क्रूड फैक्ट लगे तो। ये जैसे रॉस्को पाउंड की एक बुक थी, स्पिरिट ऑफ कॉमन लॉ, इट ऑल्सो असर्टेन द मीनिंग ऑफ नेचुरल, सॉरी द मीनिंग ऑफ नेचुरल राइट लिखना था, भूल गया, सॉरी। So it also ascertain the meaning of natural rights. Hence, Supreme Court concluded that natural rights are not bestowed by the state, that they inhere in the human beings by virtue of human. तो मतलब कि जो right to privacy है वो कहीं ना कहीं theory of natural rights से आ रहा है। फिर नेक्स्ट पेज पे लिखा है मैंने कि अब इसमें बताया कि क्या क्या उनको इंटरप्रिटेशन दिया है जो इसको फंडामेंटल राइट बनाने के लिए। तो सबसे पहला है कि राइट टू प्राइवेसी इज एन एलिमेंट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, उसको ह्यूमन डिग्निटी से भी जोड़ा इन्होंने कि प्राइवेसी एंश्योर दैट ह्यूमन बीइंग कैन लीड टू लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड रिकॉग्नाइज द ऑटोनॉमी ऑफ द इंडिविजुअल। एक केस था सुरजीत सिंह थिंड वर्सेस कमलजीत कौर, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट इसमें बोलती है कि मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ ह्यूमन फॉर हर वर्जिनिटी अकाउंट्स टू द वायलेशन ऑफ हर राइट टू लाइफ, मतलब उसकी डिग्निटी अगेंस्ट एंड एज वेल एज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन। कैन ऑल्सो रिलेट इट टू द फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी, यहाँ पर थोड़ा आइडियोलॉजी की बात करने का ट्राई किया मैंने। वी कैन ऑल्सो रिलेट टू द फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी बिफोर दिस केस, सॉरी ये क्यों लिख दिया मैंने, बिफोर दिस केस नहीं आएगा, वी कैन, ऐसे पढ़ता हूँ, वी कैन ऑल्सो रिलेट इट टू द फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी दैट इट कैन बी सेड दैट प्राइवेसी इज पर्सनल,
मतलब वो बोलते हैं ना पॉलिटिकल इज पर्सनल और पर्सनल इज पॉलिटिकल, तो वहाँ से प्राइवेसी उनके लिए पर्सनल की तरह है। ठीक है, ऑल्दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब मैंने यहाँ पे थोड़ा इस पैराग्राफ में बताया कि इसका ट्रेस कैसे किया जाता है, मतलब इसका इवोल्यूशन कैसा है। तो ऑल्दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन doesn't mention privacy right specifically, but right to privacy as fundamental right has evolutionary way. In MP Sharma case 1952 and खड़ग सिंह केस यूपी स्टेट 1962, इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि राइट टू प्राइवेसी इज नॉट द गारंटीड राइट बट इट इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर पर्सनल लिबर्टी। मतलब वो बोलती है कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट तो नहीं है, बट इट इज एसेंशियल ग्रेडियंट फॉर personal liberty. We can also decode the inherent demand of privacy in social as well religious affairs of self-respect movement by जो नायकर जी ने चलाया था, रामास्वामी नायकर। उन्होंने भी, उनका भी बेसिकली वही थी कि जो हमारा पर्सनल अफेयर है, सोशल एज वेल एज हमारा जो रिलीजियस है, उसको हमें वहाँ पर उसमें प्राइवेसी दो, थोड़ा छूट दो अलग से। तो उसको रिलेट किया मैंने वहाँ से। फिर उसके बाद इन दिस रिगार्ड सुप्रीम कोर्ट अंडर सेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है वो इस प्राइवेसी को मतलब इम्पोर्टेंस देता है। तो इन दिस रिगार्ड सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो असर्ट द सेक्शन 8 ऑफ RTI एक्ट 2005 ऑफ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन वायलेशन ऑफ प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल। तो प्राइवेसी को वो एक्ट भी एक प्रेफरेंस देता है। तो द क्वेश्चन ऑफ प्राइवेसी ऑल्सो रेज्ड इन आधार केस। ठीक है, फिर आधार केस में प्राइवेसी का फिर से बात होती है। तो एंड गवर्नमेंट यूजिंग डाटा फॉर वेलफेयर स्कीम्स, इसके ऊपर भी बात होती है कि गलत तरीके से यूज ना करे। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट बोलती है अलाउड द गवर्नमेंट टू यूज पर्सनल डाटा बट डायरेक्टेड गवर्नमेंट टू कलेक्ट एंड यूटिलाइज इट फॉर लेजिटिमेट पर्पज ओनली। तो मतलब कि यहाँ पर भी प्राइवेसी को इम्पोर्टेंस दिया उन्होंने। तो इन मॉडर्न टेक्निकल एरा जहाँ पर इंटरनेट का बहुत यूज हो रहा है, ब्राउजिंग, शॉपिंग, बैंकिंग, सब जगह पर, तो दीज एक्टिविटीज हैव रेज्ड द प्राइवेसी कंसर्न। देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट आल्सो डिस्कसेस इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इतने सब कुछ डिस्कस करने के बाद हेंस ड्यू टू aforementioned aspects of Supreme Court asserted that dignity and equality among the individual is the fundamental foundational stone of Indian Constitution. Therefore, right to privacy is an important part within the ambit of Article 22, which is mentioned in the Part 3 of Indian Constitution. आंसर तो बढ़िया है, बट मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस भी है। वो जो रिलेशन वगैरह किए हैं ना, मतलब वो मतलब थोड़े से मेरे को थोड़ा इलेबोरेशन चाहिए, मतलब कैसे कैसे रिलेट हुए। कौन कौन सा बोलो? हेलो, पर्सनल और प्राइवेसी वाला जो था। हाँ यार, ये एक्चुअली मैंने खुद ही सेट किया, ये मैं पढ़ा तो नहीं था कहीं से, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि जो फेमिनिस्ट का भी एक मतलब वीमेन की प्राइवेसी के, मैंने ऊपर एग्जांपल भी डाला है ना वो कि वर्जिनिटी का टेस्ट करवाना गलत है। तो मैंने वही बोला कि जो मतलब बोलते हैं ना वर्जिन वीमेन, मतलब मैरिड एज के केस में, तो उससे रिलेट करने का ट्राई किया, बट सही गलत आप लोग बताओ। मेरे को बस ये लग रहा है कि जो पॉलिटिकल इज पर्सन या पर्सनल इज पॉलिटिकल, ये बोलने की कोशिश ये कर रहा है कि ये जो डोमेस्टिक स्फीयर है हमारा, वो सिर्फ पर्सनल नहीं है, क्योंकि इसमें कोवर्जन और एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो स्टेट को उसके ऊपर इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि ये एम्पावरमेंट मिलेगा वुमेन को। तो यहाँ पे प्रिवेसी के कारण ऐसा हो जाएगा कि आप उल्टा बोल रहे हो, मतलब ये बोल रहे हो कि नहीं, स्टेट को यहाँ पे दखल नहीं देना चाहिए। मतलब समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? दो अलग अलग चीजें होगी। नहीं एक्चुअली, हाँ वो मैं समझ गया। अगर मैं यहाँ पे पॉलिटिकल यूज करता तो स्टेट की बात आ सकती थी। मैंने वही बोला कि प्राइवेसी इज पर्सनल, तो इसमें किसी की भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। मतलब मैंने ये सोच के लिखा कि प्राइवेसी के केस में किसी की भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, नाइदर स्टेट नॉर सोसाइटी, क्योंकि इट इज द पर्सनल मैटर। तो मैंने उस चीज को डालने का ट्राई किया। हाँ, वो समझ में तो आया मेरे को, लेकिन वो पता नहीं, मतलब आप दूसरों को कुछ मतलब लग रहा है कि सही है कि गलत है। मतलब आपने एक एग्जांपल, जो एक चीज थी उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया कि वो उसका अपोजिट आइडिया एक्सप्लेन कर सके। तो उसमें क्या इलेबोरेशन ज्यादा चाहिए, मतलब चाहिए रहेगा एग्जामिनर को, मतलब जब कोई पढ़ेगा तो। मतलब आपने जब अभी एक्सप्लेन किया तो वो सही लग रहा है, लेकिन फिर वो उसमें थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन शायद ज्यादा करना पड़ेगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। या फिर पता नहीं, समझ में जैसे आ ऐसे मतलब नॉर्मली भी अगर डाला रहता ना कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव डाल के प्राइवेसी का, क्योंकि एग्जाम्पल तो सही है
क्या कहते हैं, क्योंकि वो उनका पर्सनल स्फीयर है, वो वर्जिनिटी टेस्ट वाला जो है, तो एग्जाम्पल से ही, बट जनरली सिंपल भी डाल दिया रहता कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है कि उनका ह्यूमन डिग्निटी मेंटेन रहना चाहिए, वैसे करके रिलेट किया होता तो डायरेक्ट तो भी चल जाता मेरे ख्याल से। मतलब वो प्राइवेसी इज पर्सनल आपने डाला है, आई थिंक यू ट्राई टू मतलब उसको रिलेट करने का पर्सनल इज पॉलिटिकल टाइप, मतलब ट्राई तो अच्छा किया, बट आई गेस वहाँ पे अगर एग्जामिनर को समझ में नहीं आया या उसने उसको एक्चुअल कॉन्सेप्ट से रिलेट करने की कोशिश करी तो देन उल्टा हो जाएगा। मतलब वही मेरे को लग रहा था कि डालूं या ना डालूं, फिर मेरे को लगा यार थोड़ा और पॉलिटिकल साइंस बनाते हैं तो डाल दिया मैंने, बाकी मैं इसको हटा दूंगा मतलब ऐसा। हाँ नहीं मतलब नहीं वो मतलब पॉइंट हाँ अच्छा है, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव आपने प्राइवेसी का डाला है, वो पॉइंट बहुत अच्छा है, तो उसको सिंपल ही रहने दो कि ह्यूमन मतलब डिग्निटी को अपहोल्ड करना जरूरी है। आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना ऐसे रिलेटेड का, यही मतलब चाहिए अपने को पॉलिटिकल साइंस में, कि कैसे दूसरे कंसेप्ट को कैसे रिलेट करते हो, तो ये सही कर रहे हो। मतलब ऑब्वियसली यही हमको मेंटेन करना पड़ेगा, कितने सिंपल हम तरीके से इसको समझा सकते हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है ऐसे एक्सपेरिमेंट करने में। हाँ मतलब अपन सोच सकते हैं इस पर थोड़ा बहुत मिल करके ऐसा कुछ ना। हाँ हाँ अभी वैसे करने में कोई खराबी नहीं है, अभी करेंगे तो अच्छा है एक्सपेरिमेंट एग्जाम में करने से। और वो रामास्वामी नायकर जो उसके बाद है, वो वाला एक ब्राह्मणिकल हेजेमनी वाला नीचे है शायद। हाँ मतलब मैंने उसको बताया ना कि वो उनको अपना प्राइवेसी चाहिए था रिलीजियस अफेयर में। क्या होता था कि ब्राह्मणिज्म हर चीजें थोप रहे थे ना उन पे, तो वो उनसे बचने के लिए वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट उन्होंने अपने ही भगवान क्रिएट कर लिए थे। उन्होंने वो एक कौन थे जिन्होंने पत्थर किसी नदी से पत्थर निकाल करके उन्हीं को शिवलिंग मान लिया था। तो वो कहीं ना कहीं वो प्राइवेसी से भी रिलेट कर सकते हैं कि इन अफेयर्स में भी उनको प्राइवेसी चाहिए। तो ये हाँ मतलब सही ऐसा मैंने ऐसा बोला चाह रहा था कि ये ऐसा नहीं कि अभी डिमांड उठी है, तो ये प्राइवेसी की डिमांड है मतलब काफ़ी टाइम से। तो ये वहाँ से भी अपन मैंने इसलिए लिखा था कि वी कैन डी कोड, मतलब मीनिंग तो एक्चुअली है नहीं बट इनहेरेंट मीनिंग ऐसा निकाल सकते हैं। वही मतलब गॉड का और आपका जो रिलेशन है वो एक पर्सनल स्फीयर में आता है। तो कोई भी फॉर्म ऑफ कोवर्जन, वेदर इट्स अबाउट रिलीजियस हेजेमनी ऑफ ब्राह्मण और ऑफ द स्टेट, शुड बी मतलब मिनिमाइज, ऐसा कुछ ना, ये बोल रहे हो क्या? तो ये अभी की बात नहीं है, पहले से चलता आ हाँ रहा है। हाँ हाँ, राइट राइट राइट, मतलब वही जो प्राइवेसी का है वो पहले से ही चल रहा है। और वो ये चीज़ है जो सही आपने बोली। और तो वैसे बहुत होलिस्टिक किया है, बहुत सारे एग्जांपल और जजमेंट तो डाले ही है वैसे, सही है। हाँ मैंने वही बोला ना कि डायरेक्ट तो मीनिंग नहीं है, लेकिन इनहेरेंट अगर हम खोदना चाहें तो ये मीनिंग निकल सकता है। जैसे भी पलाश ने बोला ना कि जो गॉड का और हमारा रिलेशन है वो हमारा पर्सनल है, तो मैंने वही बात करने का ट्राई किया कि डायरेक्ट मीनिंग तो नहीं है, मतलब इवन उनकी डिमांड ऐसी नहीं थी कि हमें एकदम प्राइवेसी चाहिए, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा डिकोड करें, रिलेट करें, तो इससे थोड़ा बन सकता है वो चीज़। इसके प्राइवेसी के और क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, इसमें इवन सर्वेलेंस वाला पॉइंट आ गया। हाँ हाँ, वो एक तो पॉइंट मैंने डिजिटल स्पेसिस को रिलेट किया था अपने आंसर में, बट आई कुड नॉट, मतलब मेरे आंसर में गौरव जितने इतने वेरी वो नहीं है, और थोड़ी स्ट्रक्चरिंग में प्रॉब्लम है। मैं रीड कर देता हूँ, बाकी आप देख के। शुरुआत मैंने पॉलिटिकल साइंस से ही करी है। ये स्टेट इज नोन बाय द राइट्स इट मेंटेन्स स्टेटेड लास्टली। तो द राइट टू पर्सनल लिबर्टीज हैज found its existence since the time of Locke and Rousseau, out of which right to privacy is a huge part. It implies the right to be left alone and to be free from unwarranted interference in private matters. And privacy is a fundamental human right recognized by UNDHR. Despite its international recognition, very few countries express it as a constitutional right. Apart from countries bound by the European Convention on Human Rights, even democracies like US and India rely on interpretations of various amendments for the conception of rights to privacy. उसका वही judgment दिए Supreme Court of India to MP Sharma और खड़क सिंह वाला केस stated that right to privacy didn't exist under the Indian Constitution but through
Govind versus State of MP case, 1975, it held that privacy is a precondition for enjoyment of other fundamental rights. So finally, Puttaswamy versus Union case judgment held that right to privacy is a fundamental right and intrinsic part of the right to life, Article 21. Even after the opposition from the originalist interpretation of Constitution that it does not stem from the indigenous text by the Constitutional Assembly. इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी तरफ ये एक्चुअली पॉइंट मुझे पहले डालना चाहिए था, मेरे को बाद में याद है. So in this context, Kohli Saurabh stated that just like the right to freedom of press, which is not originally set down in Article 19 but has been reduced, the reduction of right to privacy is also valid. He also opposed the idea that privacy pressure of only the elite and not the masses by stating it as a paternalistic view which claims exclusive right over citizens. तो फिर इसको रिलेट किया मैंने इंटरनेशनल लेवल पे कि Alan Weston Narcotic regimes with totalitarian aspirations denying that individuals have a legitimate interest in privacy, whereas democracies are premised on the belief that individuals may keep certain areas of their life private. Thus, protection of privacy is a hallmark of society that values liberty, freedom of speech and expression along with dignity. तो उसके बाद फिर मैंने वो दिया था कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट कि द सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश द वर्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द राइट टू प्राइवेसी अगेंस्ट द स्टेट. हाउएवर उसका जो हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन है अगेंस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स हैज बीन लेफ्ट ओपन टू केस बाय केस एडजुडिकेशन as seen through government's response to halting of centers surveillance projects like CMS, नेत्रा, नेट क्रेडिट. तो पर वो उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे उसको वो कर दिया था रिजेक्ट. तो इसीलिए फिर मैंने उसको फिर डिजिटल से रिलेट किया लास्ट में. मुझे थोड़ा सा नहीं with the expansion of new technologies like AI and IoT, the concept of privacy in the digital realm is still under debate. Therefore, there is a need to actualize the draft personal data protection bill to create a balance between the rights of individuals and public healthcare as opined by B.N. Krishna. थोड़ा हैपथेट हो गया पर आई थिंक आई नीड टू चेक दिस बेटर. अच्छा, इसमें ना एक और चीज किसी ने कहीं तो पढ़ी थी, अपन ने शायद पहले भी डाला था किसी ने कि फोर्थ जनरेशन राइट्स की लोग बात करते हैं डिजिटल राइट्स की, एंड दैट इज मेनली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल दीज इश्यूज दैट आर अराइजिंग. उसमें राइट टू प्राइवेसी भी आता है, तो वो वैसा भी हम एक पॉइंट डाल सकते हैं कि मतलब फोर्थ जनरेशन ऑफ राइट्स का टाइम आ गया. जस्ट लाइक देयर इज फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कि हर कुछ क्राइसिस होता है तो देयर इज अ न्यू जनरेशन ऑफ राइट्स दैट कम्स अप. तो पहले सिविल पॉलिटिकल आया, फिर इकोनॉमिक सोशल आया, देन एनवायरमेंटल डेवलपमेंटल वाला आया. नाउ देयर इज अ न्यू क्राइसिस इन दिस फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण, एंड देयरफॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल राइट्स, फोर्थ जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट डिजिटल राइट्स का भी उस पे भी डेलिब्रेशन डिस्कशन चालू होना चाहिए टाइप. वही मतलब टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ में इतनी घुस चुकी है कि वो मतलब एक तरीके से कंट्रोल ही कर रही है, तो एक सेफगार्ड तो होना चाहिए ह्यूमन लाइफ में. करेक्ट करेक्ट. उसको रेगुलेट करने के लिए देयर शुड बी सेट ऑफ राइट्स, समथिंग जो दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल. ये शायद अपन ने वो उसमें भी पढ़ा था, मैंने एक डाला है कि कमेंट में ब्रूस नाइनर करके, उसका भी था प्राइवेसी इज एन इनहेरेंट ह्यूमन राइट और रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनिंग द ह्यूमन कंडीशन विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट. इसका ही था फिर वो कि हमने स्टेट के सामने अपने राइट्स को ये कर दिया, मतलब दे दिया तरीके से, और क्या नाम है कंपनी या बिग डेटा कंपनीज को हमने अपनी और अपने राइट्स को ये दे दिया. तो हमने एक मास सर्वेलेंस टाइप का एक कंडीशन डेवलप कर दी है हमारे ही गलती के कारण. ऐसा ही इसका एक कोई कमेंट था ब्रूस नाइनर का. तो अगर लगा रेलेवेंट तो डाल देना. अच्छा, ये किसी को याद है क्या, राइट टू प्राइवेसी को राइट टू लाइफ बोला था जब सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसमें क्या जस्टिफिकेशन दिया था पुट्टास्वामी केस में? पता नहीं, वो वाला नहीं. मतलब जनरली तो अपन ये बोल सकते हैं कि राइट टू प्राइवेसी एक पर्सनैलिटी का एक पार्ट होता है उसका, तो एंजॉयमेंट, और शायद शानू ने डाला भी है कि वो एक प्री कंडीशन है फॉर एंजॉयमेंट ऑफ अदर राइट्स करके. क्लियरली किसी को पता नहीं जस्टिस से रिलेट किया था, नेचुरल राइट से रिलेट किया था. मैंने पढ़ा था
आई थिंक इससे दिशा पढ़ा था। सॉरी, दृष्टि IAS पढ़ा था। एक स्टेटमेंट में पढ़ देता हूँ इसके लिए, एक्चुअली कॉपी पेज नहीं हो पाएगा, स्क्रीनशॉट है। Privacy connotes a right to be left alone. It safeguards individual autonomy and recognizes one's ability to control vital aspects of his or her life. ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उसने रीजनिंग दिया था ऐसा। मैं ऐड कर दूंगा, चलो आगे बढ़ते हैं अपन भी। Constitutional protection of the right to freedom of religion and How far? have they succeeded in promoting secularism in India? Secular Socialistic Republic India is a sovereign democracy governed by Constitution. In the eye of Constitution, all religions are equal and they are given equal treatment. Article 25 to 28 talks about religious freedom, which enhance the secular character of state without any state religion. Rajiv Bhargava calls it a principled distance model of secularism. As there is no religion of state, everyone gets equal treatment. They propagate religion with full freedom. There is consistency लिखा जाता है क्या? ये conscience is consigned to administer one's own religion. तुझे समझ में आ रहा है? तलाश के पढ़े, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। Right to equality in Article 14-18 also put constitutional obligation to treat everyone equally, whatever their religion, caste, race, sex, etc. While Article 29-30 deals with the cultural and educational rights of minorities, this additional safeguard ensures that religious freedom remain intact. Well, these provisions help India to remain united. Minorities enjoy equal protection, and there is no antagonism against each other. Unlike Pakistan, which got something between Bangladesh, Pakistan, despite diversity, India remained peaceful throughout. ठीक है, कुछ होगा मतलब instability की बात कर रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश में. With additional safeguard like affirmative action, government have to try to give them equal. affirmative action से time to time इन लोगों ने treat थोड़ा करने की कोशिश की, equality of opportunity provide करने के लिए. D. Smith and Ashish Mandi calls that secularism not possible in India, while Pratap Banu Mehta differs, saying India's constitution provides enough space but politicians use it for vote bank. ठीक है, space provided लेकिन politicians कुछ और theory के लिए use किया. In theory there is secularism everywhere, but there is rising trade of communalism. ठीक है, communalism कर रहा है. Romila Thapar says we need bold something secularism to deal with present crisis. Structure committee
old mode of in his structure committee in his report found that this has led to anti-Muslim approach among majority. Thus we can say ideas of secularism should be replaced by the idea of toleration. Parth Chatterjee says this will lead to real freedom. स्कॉलर्स तो थे बहुत सारे से. प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल राजीव भार्गव का है या प्रताप भानुमति का है? राजीव भार्गव. भार्गव प्रताप भानुमति ने उसको क्रिटिसाइज किया है कि वो वोट बैंक पॉलिटिक्स को लेजिटिमाइज करता है प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल. ओके ओके. इसको थोड़ा वेस्टर्न वाले से शायद कंपेयर करना चाहिए था. मतलब जब भी अपनी बात होती है तो वेस्टर्न वाले से बोलते हैं ना कि वहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, यहाँ पे वैसा नहीं है. यार पहले तो हम लोग उसमें 2 क्वेश्चन है, मतलब एक में 2 क्वेश्चन है सेकुलर, वो दोनों का मेरे ख्याल से डिमांड थोड़ी अलग अलग रहेगी लिखने टाइम. तो पहला था व्हाट आर द प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड हाउ फार हैव दे सक्सीडेड इन प्रमोटिंग सेक्युलरिज्म इन इंडिया. तो राइट टू फ्रीडम के लिए कौन से प्रोविजन दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में और कितने हद तक वो सेक्युलरिज्म प्रमोट करने के लिए सक्सेसफुल रहे, ऐसा है. तो शायद वो प्रोविजन भी मेंशन करना चाहिए था. हाँ, वो मतलब प्रोविजन तो दोनों ही क्वेश्चंस में आएगा क्योंकि दूसरे में भी सेकुलरिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है. सब तो आर्टिकल्स वगैरह मेंशन करना चाहिए. आर्टिकल्स शुरुआत में मेंशन करना जरूरी है, फिर देन एनालिसिस जो भी रहेगा उसका. यार हाउ फार इट हैज सक्सीडेड में क्या बोलना चाहिए, मतलब कुछ उसके कुछ पॉइंट्स बताना चाहिए कि इट हैज सक्सीडेड, कुछ पॉइंट्स बताना चाहिए कि हाउ इट हैज नॉट सक्सीडेड. हाँ, क्रिटिसिज्म तो थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ेगा. हाँ, तो मतलब उसमें मतलब फिर देन सेकुलरिज्म कैसे करेंगे उसको, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया क्या एग्जांपल्स देना ठीक रहेगा क्रिटिसिज्म में. पहले तो शायद वो वेस्टर्न वाले में कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, जो भी आपका कर रहा है स्टेट का उसमें मतलब ओवर पावर रहेगा रिलीजन के ऊपर भी, जो स्टेट कहता है वो. लेकिन हमारे केस में वैसा नहीं है ना. हमारे केस में उनको थोड़ी सी ज़्यादा छूट दिया जाता है, जैसे उनके पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरह भी हमने अलाउ किया है. तो फिर शायद हम गांधी वाले का बोल सकते हैं, कोई भी हमको रिफॉर्म चाहिए तो वो तभी आ सकता है जब वो ग्राउंड लेवल से सोशल रिफॉर्म की तरह पहले आए, बाद में पॉलिटिकल रिफॉर्म इफेक्टिव रहेंगे, जैसे गांधी बोलते हैं ऐसा कुछ. क्योंकि साबरीमाला केस में भी नहीं हुआ ना, आखिर में जजमेंट होने के बावजूद ऊपर से नहीं होना चाहिए, नीचे से ऊपर जाना चाहिए, ऐसा कुछ. हम्म. हम्म. हाँ, मतलब 2 पार्ट जैसे संदीप ने बोला था, एक सक्सेसफुल वाला देखना है और एक जिसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ. तो शायद आम्बेडकर वाला सक्सेसफुल में आ जाएगा और फेमिनिस्ट वाले भी. हम्म. हम्म. एक्चुअली उसी कॉन्टेक्स्ट में शायद इसने भी बोला था राजीव भार्गव ने, जो प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल है ना, कि मतलब हम लोग कंप्लीटली सेपरेट नहीं करते हैं स्टेट और रिलीजन को, वहाँ पे एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट है साइमल्टेनियस. तो स्टेट को जहाँ लगता है कि इंडिविजुअल राइट्स को परस्यू करने के लिए रिलीजन में क्या कहते हैं इंटरफेयर करना चाहिए, तो स्टेट करता है. तो उसको एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब हमने जो प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल लिया है, ना कि वो क्या बोलते हैं उसको,
सब कुछ लोगों का Strict कहना था कि separation लाइक नहीं है। हाँ स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है कि बाकी फिर बाद में हम क्रिटिसिज्म में डाल सकते हैं कि यही प्रिंसिपल सेपरेशन मॉडल जो है वो प्रताप भानु मेहता ने बोला कि वो एक तरह से वोट बैंक पॉलिटिक्स को लेजिटिमाइज करने के लिए था एंड इट हैज फर्दर डिवाइडेड द सोसाइटी। राजीव भार्गव ने भी रिसेंटली शायद कुछ कुछ अपने पर्सपेक्टिव चेंज किए हैं मतलब लास्ट 1 और 2 ईयर्स में मेरे को जहाँ तक ध्यान आ रहा है उसने कुछ आर्टिकल्स लिखे थे सेकुलरिज्म पे। किसी ने पढ़े हैं क्या वो? नो ब्रो, यहाँ प्रिलिम्स के नहीं पढ़ पा रहे हैं। हाँ, सोने का टाइम नहीं मिल रहा है। देख सकते हैं वो। नहीं और तो कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, ये सेल्फ सफिशिएंट लग रहा है मेरे को आंसर। मतलब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें स्कॉलर्स बहुत हैं और भी खूब सारे यहाँ नोट्स में लिखे हुए हैं। हाँ कर दो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ ठीक है। क्वेश्चन है राइट कमेंट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन इंडिया। सेकंड है एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 32 of Indian Constitution. So Thomas Hobbes had remarked that convenience without swords are words and no strength to secure a man at all. Fundamental rights guaranteed in Part 3 of the Indian Constitution are meaningless if they are mere guarantees without the power of enforcement. Right to constitutional remedies enshrined in Article 32 of Indian Constitution were hence termed as the heart and soul of the Indian Constitution by the chairman of the drafting committee of Constitution, Dr. B.R. Ambedkar. Article 32 confers the right upon every citizen to move the Supreme Court against the violation of any right enshrined in Part 3 of the Indian Constitution. Supreme Court is empowered to issue writs as habeas corpus, certiorari, quo warranto, prohibition and mandamus under Article 32 to secure the fundamental rights of citizens. Writs are considered as the highest guarantee of personal liberty of citizens. In the landmark ADM Jabalpur versus Shivakant Shukla case, Supreme Court had declared that the writ of habeas corpus cannot be suspended even during the period of emergency. Article 32 upholds the rule of law and the ideal liberty enshrined in the preamble to the Constitution. It acts as a check against the excessive of government. It designates the highest court of the land, the Supreme Court, as the guardian of fundamental rights. In challenging circumstances as the 1975 to 77 emergency and the 2020-21 lockdown, nationwide lockdown and the COVID pandemic, this article assumes special importance as a recourse citizen who face the violation of fundamental rights in the hands of executive, excessive and legislative apathy. ये जो इन्होंने लिखा है ना जबलपुर वाला केस, इसको तो ब्लैक एक्ट नाम से जाना जाता है ना। इसमें ऐसा हुआ था कि इन्होंने बोला था कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इमरजेंसी के टाइम पे हैबीज कॉर्पस की भी पावर छिन जाती है, कैन नॉट बी सस्पेंडेड। कोई करेक्ट करो। राइट टू लाइफ भी सस्पेंड हो जाता है, ऐसा कुछ तो बोल दिया था। हाँ तो मतलब इसको तो ब्लैक ऐसा बोलता है ना कि ब्लैक। हाँ मतलब जुडिशरी अच्छे सेंस में तो नहीं पढ़ा मैंने कभी। राइट टू लाइफ कैन नॉट बी सस्पेंडेड। हाँ बट इस केस में इन्होंने बोल दिया था कि इन इमरजेंसी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड। वो शायद बाद में आया था ना 20 एंड 21 तो कि वो क्या था। हाँ। तो अभी इस इमरजेंसी के बाद शायद अमेंडमेंट आया था कि वो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी सैक्रोसेंट।
इमरजेंसी में भी नहीं हटा सकते। हाँ मतलब बोलते हैं ना कि इमरजेंसी के टाइम पे बहुत पैसिव हो गई थी जुडिशरी, पावरलेस बोलते हैं, इसी केस को बोलते हैं कमिटेड जुडिशरी। हाँ, कमिटेड जुडिशरी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, वैसा वाला कि दे शुड बी कमिटेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट। और ये बेसिक सोशल में भी तो है ना, वो वाला भी शायद मेंशन कर सकते थे। हाँ, को केस याद है क्या? हाँ वो लिखा है इन्होंने, वो लिखा है शायद। हाँ वो सेकंड पैरा में लिखा है। वो जैसे इसने लिखा है ना कि कोवेनेंट विदाउट स्वॉर्ड्स आर नथिंग बट वर्ड्स, तो लाइक वैसे हम कुछ बना सकते हैं ना कि अगर फंडामेंटल राइट्स कोवेनेंट्स हैं तो इट्स लाइक द स्वॉर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, समथिंग लाइक दैट। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में तो थ्योरीज आ सकती है ना कि वो सैंक्शन के बिना कोई राइट रिकॉग्नाइज नहीं होता है करके, मतलब कोई राइट की वैल्यू नहीं है विदाउट सैंक्शंस, तो ये एक तरह से उस चीज को अपहोल्ड करता है। क्या था वो थ्योरी ऑफ, कौन से राइट्स थे यार वो, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स का दूसरा वाला क्या था, अपोजिट क्या था नेचुरल राइट्स का, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स का, लीगल राइट्स। लीगल राइट्स। हाँ, थ्योरी ऑफ लीगल राइट कहता है ना कि जब तक स्टेट का सैंक्शन ना हो तब तक सारे राइट्स मीनिंगलेस हैं। तो ये प्रोविजन एक तरह से उस बात को अपहोल्ड करता है, थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स को, कि फंडामेंटल राइट्स दिए हैं और उसका एक इम्प्लीमेंटेशन का, उसके सैंक्शन भी स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट है। Granville also consider fundamental rights and directive principle of state policy as consigns of the Constitution. Together, they contain the philosophy of the Constitution and the soul of the Constitution. FR and DPSP are cherished in the Constitution of India. Together, comprises the human rights of an individual. Over the period of time, there has been conflict over the interrelationship of the two. In Golaknath versus State of Punjab case, Supreme Court said fundamental rights cannot be diluted, abridged, diminished, or taken away. DPSP was brought below the fundamental rights. Similarly, in Champak Durai Rajan versus State of Madras case, Supreme Court held that DPSP cannot override the provision of Part 3 of Constitution. The turn in the trend came with Kerala Education Bill, where the doctrine of harmonious construction was introduced. Here, Supreme Court considered FR and DPSP to go hand in hand to avoid conflict. In Keshwananda Bharti case, fundamental right and DPSP were considered as a structure of the basic structure of the Constitution. In Dalmia
case, FR and DPSP were considered supplementary and complementary to each other. According to these cases, FR and DPSP go together and neither of them is supreme to each other. Basic feature of the Constitution is to maintain harmony between FR and DPSP. कोई स्कॉलर नहीं है क्या? बस एक रैंडल ऑस्टिन और अंबेडकर। इसका हैंडराइटिंग अच्छा है। हाँ वो तो है। पलाश ने भी लिखा है ना इस पे। हो गया क्या पढ़ना? रिकॉल आ गया था। मतलब स्ट्रक्चर ही बता देता हूँ, मतलब वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बता दिया मैंने, फंडामेंटल राइट्स और उसके बारे में बता दिया, डीपीएसपी क्यों वो इम्पोर्टेंट है, एक स्टेट को फेवर करता है पॉजिटिव के बारे में, एक स्टेट को नेगेटिव करता है, तो उनकी आइडियोलॉजी दे दी, एक लिबरलिज्म के लिए है और एक वेलफेयर स्टेट को बोल रहा है, तो क्लासिकल है पहला और दूसरा वेलफेयर स्टेट वाला।
और दूसरे में फिर दोनों ही बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी पीपल के बारे में बोलते हैं, लेकिन उनका रिलेशन थोड़ा कंपेटिबिलिटी थोड़ी कंटेंशियस रही है। तो इसमें जुडिशरी और लेजिस्लेचर का टसल हो चुका है। तो दूसरे दूसरे केसेस में दोनों का अलग अलग स्टैंड रहा है, और एक ने अमेंड किया है, एक ने नया इंटरप्रिटेशन दिया है। लेकिन आखिर में इमरजेंसी के बाद जब सिचुएशन नॉर्मल हुई, तो फिर मिनर्वा विल्स केस ने उसको एक तरीके से एक फाउंडेशन लेड की कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन वाली। तो उसमें कुछ चीज़ों में ये आगे रहेगा, कुछ चीज़ों में वो आगे रहेगा, लेकिन दोनों के संगम से ही बेडरॉक बनता है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स और ये अच्छे से फ्लरिश हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन फ्लरिश हो सकता है, वो सब। और बाद में फिर फंडामेंटल राइट्स एक इंस्ट्रूमेंट वगैरह बता दिया मैंने, क्यों चाहिए था हमें, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी जस्टिस वगैरह चाहिए था। लेकिन ये इसकी डेफिनेशन वगैरह चेंज हुई है, और एक दूसरे के ऊपर जो मतलब एक दूसरे के ऊपर जो भारी वगैरह जो हो रहा है फंडामेंटल, एक तो इसके ऊपर, वो नहीं तो वो उसके ऊपर, इसलिए क्योंकि उनकी डेफिनेशन वगैरह चेंज हो रही है। कंटेक्स्ट में देख सकते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस भी चेंज हुआ है और कंडीशन भी चेंज हुए हैं, जब एलपीजी वगैरह जो आ रहा है। तो अम्बेडकर ने फिर इसलिए लिविंग डॉक्यूमेंट रखा है कि अमेंडमेंट्स में होने चाहिए, तो तभी वो जस्टिस दे पाएगा हमारे लाइफ की तरफ, ऐसा कुछ। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन दर इंटर रिलेशनशिप, मतलब वही केसेस ही है ना आखिर में, कि कैसे दूसरे ने, मतलब लेजिस्लेचर और जुडिशरी ने अलग अलग इंटरप्रेट किया उसको, क्या डेफिनेशन चेंज की उसकी। मुझे कुछ सजेस्ट करना है कुछ स्ट्रक्चर में, या फिर कोई और पॉइंट्स या पर्सपेक्टिव ऐसा कुछ। शायद मिल वगैरह भी डाल सकते थे इसमें, पॉजिटिव एक बोल रहा है, एक थोड़ा नेगेटिव एक्सपेक्ट बोल रहा है, और सोशल लिबरल वाला भी डाल सकते थे, कैपेसिटी बिल्डिंग वाला जो भी है। मेल का एक था ना कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी वाला, हम्म, कि इंडिविजुअल को डेवलपमेंट में मतलब हेल्प करना चाहिए, टाइप्स ऐसा हम्म, कुछ था। वही वो वाला। डीपीएसपी से परस्यू करते हैं, इनफैक्ट दोनों से ही परस्यू कर रहे हैं। ये मार्क्सिस्ट का भी डाल सकते हैं, इकोनॉमिक इक्वालिटी, हम्म, बेसिक स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। हम्म। वही मतलब डीपीएसपी में हो जाएगा वो, सोशो इकोनॉमिक के लिए मार्क्सिस्ट जिसके लिए एडवाइस करते हैं, क्योंकि उनके लिए इक्वालिटी सर्वोपरि है। लाइक सोशल लिबरल, लेकिन हाँ, वेलफेयर स्टेट वाला वो भी सही है। वो वाली चीज डाल सकते हैं क्या, फर्स्ट जनरेशन राइट, सेकंड जनरेशन राइट, हम्म, सिविल पॉलिटिकल वाला जो एस्पेक्ट है वो फंडामेंटल राइट्स में ब्रॉडली है, जिसमें नेगेटिव रोल है स्टेट का और पॉजिटिव रोल स्टेट का ज़्यादातर डीपीएसपी में। हाँ, मतलब इंटरनेशनल इसमें उन लोगों ने फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को दोनों को ह्यूमन राइट्स के एम्बिट में इंक्लूड किया है, हाँ एक हाँ। तरीके से। मतलब इंटरनेशनल सिचुएशन क्या कहती है इन दोनों राइट्स के बारे में, वो बता सकते हैं शायद। अरे इस पे कुछ लिखा है क्या, इमर्जिंग ट्रेंड पे? वही मैं पूछ रहा था, इमर्जिंग ट्रेंड मतलब जो इनका जो टसल चल रहा था और इन लोगों ने रीडिफाइन किया हर बार अमेंडमेंट करके और इंटरप्रिटेशन करके, यही इमर्जिंग ट्रेंड हुआ ना। हाँ, एक चीज इसमें ये डाल सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन जो था वो पहले डीपीएसपी में हुआ हाँ, करता था, उसको फंडामेंटल राइट बनाया। वो सही एग्जांपल हो जाएगा, जिसमें दोनों में डीपीएसपी भी था, एफआर भी हो गया, सही है। and protecting environment and right to
का डाल सकते हैं, राइट टू सिटी ऑफ द स्टेट वाला डाल सकते हैं, लेजिस्लेचर जुडिशियल का कैसे उन लोगों ने री इंटरप्रेट किया, कैसे हमारी कैपेसिटी इंक्रीज है, ठीक है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन फिर। आई थिंक एक लास्ट क्वेश्चन बच गया था जिसपे अभी किसी ने आंसर नहीं लिखा, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। दिस वाज डिस्कस राइट टू information and underlying challenges posed by it, sorry, posed before it. स्टार्ट कैसे करोगे? तो थॉमस जेफरसन वाला कुछ था, इंफॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी कुछ। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन से कर सकते हैं ना, लाइक इफ ही हैज इनपुट देन ओनली इट कम्स एज एन आउटपुट, सही है। डेलिबरेट डिस्कशन टू मेक अ चॉइस और टू इवन give proper justice to the speech and expression, right to information is a precondition for it, ऐसा कुछ। हाँ, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसको दोनों आर्टिकल 19 के अंदर भी लिया है और आर्टिकल 21 के अंदर भी लिया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन को। थिंक वो सब चीज डाल सकते हैं स्टार्टिंग में, एक्सप्रेशन के पार्ट में आएगा ये इंफॉर्मेशन। 14 और 19 में डाल, 21 में नहीं डाला है क्या इसको? नहीं, 19 और 21 बोल रहा हूँ। अच्छा 19 और 20। एंड ए ड्रॉबैक में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट डाल सकते हैं। द कॉलोनियल रूल इज स्टिल कंटिन्यूइंग, द हेजमनी ग्राम्सियन सकते हैं। हाँ वही, मतलब दोनों का एक तरह का डिलेमा ही है, मतलब स्टेट का कैसा है इसमें, मतलब उनको जो अपना ड्यूटी निभानी है सिक्योरिटी और उसके लिए, और दूसरा राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑफ द सिटीजन, तो दोनों के बीच में एक तरह का हमारा ट्रेड ऑफ रहता है। फिर वो शायद इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और वो सब का भी चल रहा है ना अभी कुछ। हाँ वैसे तो ये 2016 में पूछा गया था, और अभी तो अपन वो भी डाल सकते हैं कि उनका वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है डाउनग्रेड कर दिया। सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या, पहले इक्विवेलेंट थे ना आई थिंक इलेक्शन कमीशन के, तो अब उसको डाउनग्रेड कर दिया और टेन्योर भी रिड्यूस कर दिया उनका। technical staff that goes to PS, right? थियरी वगैरह क्या रहनी है इसको, अलग थियरी। हाँ अकाउंटेबिलिटी से कुछ लिया। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन को यूडीएचआर में भी लिया है क्या? लिया होगा शायद, सिविल और पॉलिटिकल राइट में होगा कि। हाँ, वैसे सिविल पॉलिटिकल में आएगा। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के लिए इम्पोर्टेंट है ना राइट टू इन्फॉर्मेशन। डेलिबरेटिव किसी स्कॉलर ने बोला, मिल नहीं बोला है कि, या नहीं, उसने फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन बोला है। मेरे को तो एथिक्स ही याद आ रहा है, मतलब गुड गवर्नेंस और वो सब ही लग रहा है। अकाउंटेबिलिटी, मतलब वही रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपेरेंसी, उसके लिए जरूरत है। आई थिंक वो हेबर मास वाला, या फिर वो जो भी पॉइंट है ना जो उन्होंने स्पीच एंड एक्सप्रेशन में लिया था, आई थिंक उसको यूज करके बोल सकते हैं कि पीपल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग अंटिल एंड अनलेस दे डोंट नो, दे डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट इट। तो आई थिंक उस पर्सपेक्टिव से ये स्कॉलर्स के थोड़े व्यूज ऐड ऑन कर सकते हैं, हेबर मास हो गया या फिर हाँ सही है।
मतलब डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी में हेबरमास का ही था ना वो आइडियल कंडीशन वाला कि सब आइडियल अपना स्पीच कंडीशन एंड कम्युनिकेटिव एक्शन। तो यहाँ पे तो आई थिंक आइडियल स्पीच कंडीशन या कम्युनिकेटिव एक्शन तब तक नहीं कर पाएंगे ना जब तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी। और आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सेम चीज बोला है उन्होंने भी कि पीपल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग अंटिल दे डोंट नो। इसलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो फंडामेंटल राइट्स के मतलब 19 और 21 के अंदर डाला है। सिटीजन चार्टर भी डाल सकते हैं इसमें। बट वो तो अलग हो गया ना। वो भी सेम एग्जाम्पल है के ना, तौर पे ले इंफॉर्मेशन सकते हैं। मतलब they have information about how the organization functions, what are the process and procedures, तो वो स्टेट and डाउन पहले से हो जाता है। election candidate also we can ask for regarding his criminal background. They have to submit right now in 51 RTA. हाँ ये डाल सकते हैं लाइक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है करके। Criminalization of politics enter करते like money and muscle ऐसे power. हाँ मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट के अंदर तो नहीं है बट वी हैव लाइक दे हैव टू डिस्क्लोज दैट इन्फॉर्मेशन कि पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं आती है आरटीआई के अंदर। डालना चाहिए वो चीज़ यहाँ पे। हाँ जनरली हम कह सकते हैं ना राइट टू इन्फॉर्मेशन लाइक वी हैव अ राइट टू इन्फॉर्मेशन। पता नहीं है मतलब सुप्रीम कोर्ट के जनरली जजमेंट के बाद से तो वी हैव एक्सेस टू दैट इन्फॉर्मेशन एंड इट स्ट्रेंथेन्स इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। हाँ ठीक है, हाँ इस सेंस में कर सकते हैं। और वो फिर थोड़ा आई थिंक होलिस्टिकली कवर हो गया कि इंफॉर्मेशन को लेके। बाकी वैसे तो वो आरपीए एक्ट के अंदर डाला है ना उन्होंने शायद। आरटीआई में नहीं है मतलब वो। आरटीआई में नहीं है। तो आरटीआई एक ले लेंगे जिसमें है, और दूसरा वाला जो बताया है कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में डिस्क्लोजर वगैरह किया है, और सिटीजन चार्टर जो बताया वो सब अपन बोल सकते हैं कि हाँ वो इन्फॉर्मेशन राइट टू इन्फॉर्मेशन के एम्बिट में ही आता है शायद, मतलब ऐसा कुछ बोल सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ डाल सकते हैं इसका, अगर कोई एग्जांपल हो तो बताना। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी या राइट्स को अपहोल्ड कर पाए हो, जैसे सिविल सोसाइटी फॉर एग्जांपल दे मस्ट हैव फाइल्ड सम आरटीआई। मतलब इसमें जो जेनेसिस है ना इसका राइट टू इन्फॉर्मेशन का, तो वो हम वो मजदूर किसान शक्ति संगठन है। तो हाँ उसने बेसिकली जो करप्शन था ना, जो धांधलीबाजी हो रहा था राजस्थान के अंदर, ये लेबर को जो चार्जेस दिए जाते थे उनको लेकर, तो वहां से उसका जेनेसिस है कि यहाँ पे प्रोएक्टिवली मतलब सॉरी जो इन्फॉर्मेशन है वो सीख करी जाए तभी जाके वो करप्शन एंड हो पाएगा। या स्टेट के आर्बिट्री एक्शन, मतलब इसको यहाँ करप्शन बोलने की बजाय थोड़ा सा पॉलिटिकल सेंस में बोले तो स्टेट के आर्बिट्री एक्शंस को रोका जा सके। तो आई हाँ थिंक correct। वहां से उसका जेनेसिस है। तो आई थिंक वो चीज डाल सकते हैं कि सोसाइटी ने ही उस चीज को लेके आया टू इंश्योर कि एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहे डेमोक्रेसी के अंदर जो एग्जीक्यूटिव है उनकी। एक कोई सा केस था ना राजनारायण, राजनारायण। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण में पीपल ऑफ दिस कंट्री हैव अ राइट टू नो एवरी पब्लिक एक्ट। वो राजनारायण वाला केस ही है वो, जिसमें शायद वो इमरजेंसी वाला राजनारायण ही है। सुप्रीम कोर्ट केसेस डालने से थोड़ा अच्छा लगेगा वो। Recently, the Cabinet Committee on Security Affairs, they said that a sensitive personnel who was retired from a like military personnel who couldn't write a book from his retirement for 5 years or 10 years after his retirement. Like they write about autobiography, right? In that, then we'll try to mention some security information about sensitive threats, like loopholes in India, like that. They right. वो थोड़ा पेक्यूलियर, बहुत ही पेक्यूलियर इंफॉर्मेशन हो गया ना आई थिंक। मैं ज्यादा बोल दिया, इसमें कट शॉट कर सकते कुछ। अच्छा इसमें चैलेंजेस भी पता नहीं। अच्छा एक चीज और मिली मेरे को अभी, जयंतीलाल मिश्री वर्सेस आरबीआई का केस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है द आइडियल ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल मेक्स इट नेसेसरी दैट पीपल हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक कंसर्न। गवर्नमेंट बाय द पीपल वाली चीज आ गई। फिर इट क्रिएट्स अ कंडीशन फॉर ओपन गवर्नेंस विच इज अ फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी।
तो ये वहाँ डाल देता हूँ। ये ज़्यादा पुराना नहीं है, 2015 का ही केस है। एंड ये राफेल राफेल वाला भी डाल सकते हैं, बट दे आर आस्किंग अबाउट राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफिकेशन, बट वो हाउ थोड़ा कैन वी, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा यार वो। वो भी चैलेंजेस पूछ रहे ना इसमें, तो ऐसा नहीं वो पूछता। बोलने के लिए ठीक है, बट वो पेपर में डालना सही नहीं लगेगा राफेल वाला। हमें मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे ना अच्छे। हम वैसे सेकेंड एआरसी को साइड करके डाल सकते हैं ना, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वगैरह के, वो इट्स एन इम्पेडिमेंट एक तरह से इन रियलाइजिंग कंप्लीटली आरटीआई को। Actually, it is true. Like they shouldn't. I don't know about the how good the scam is, but they shouldn't reveal those sensitive facts, right? कुछ है सार इसमें डाल सकते जैसे टू असर्टेन एंड द एफिकेसी एंड एफिशिएंसी ऑफ स्टेट पॉलिसीज स्कीम्स एलोकेशन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि आखिर में ये पब्लिक मनी वगैरह ही है। तो इसमें एक फर्दर चेक हम लोग डाल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल चेक करके ऐसा कुछ। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यही कहता है कि जो गवर्नमेंट है वो आर्बिट्री एक्शंस वगैरह नहीं हो सकते, उसके ऊपर एक चेक्स और कोई रीजनेबलनेस होना चाहिए, और आरटीआई उसका एक प्राइम फैक्टर है या कंपोनेंट है वो हाँ हाँ, चेक राइट करने राइट। का ऐसा कुछ। अच्छा, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी आरटीआई। तो आरटीआई मतलब हम लोग यहाँ पे आरटीआई को बेसिकली डेमोक्रेसी के तीनों ही एस्पेक्ट्स में ले जा सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव में भी, पार्टिसिपेटरी में भी और डेलिब्रेटिव में भी। अच्छा है पॉइंट। पार्टिसिपेशन हो या डिस्कशन हो, आपको इन्फॉर्मेशन वो पहले होनी चाहिए, तभी कुछ कर पाओगे। हाँ, डिस्कशन के लिए इंफॉर्मेशन जरूरी है। आरटीआई में अगर आप सवाल पूछ रहे हो सरकार से तो इट इज अ काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन। और फिर इलेक्टोरल वाला डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में भी इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके बेसिस पे आप अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर रहे हो। इन्फॉर्म ओपिनियन सही है। इसमें चैलेंजेस का क्या? हाँ चैलेंजेस में नेगेटिव इम्पैक्ट डालने हैं क्या? आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन पूछा है ना। मतलब वही है चैलेंजेस, तो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। हाँ वो सही है, वैसे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं जो फालतू के आई सवाल थिंक पूछते हैं। हाँ, ये कौन सा थे यार वो पिछले वाले, ऐसे बोबड़े। तो उन्होंने बोला कि ये आरटीआई ने ना एक फियर ऑफ वो क्रिएट, एक फियर साइकोसिस क्रिएट कर दिया, जिससे डिसीजन मेकिंग ना पैरालाइज्ड हो गई है ऑफिसर्स की। आई थिंक ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। पॉलिसी पैरालिसिस। हाँ, हम्म। मतलब वो एक फियर हो गया उनके अंदर के, कोई भी कभी भी इंफॉर्मेशन मांग लेगा उनसे। तो वो एक फियर साइकोसिस डेवलप हो गया, जिसके कारण डिसीजन मेकिंग ना वो थोड़ी सी पैरालाइज हो गई, इस सेंस में उन्होंने बोला था। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट के जज है, तो एक अथॉरिटेटिव वो है, उनकी वैल्यू है उसकी, वो उनको ऐड कर सकते हैं। हाँ बोबड़े ने एक्चुअली बोला ना। सही भी है, मतलब हम जनरली उसको ऐसे लिखने से बेटर है कि जस्टिस बोबड़े टाइट साइड करेंगे तो बेटर रहेगा। हम्म, शायद कुछ एथिक्स वगैरह में कुछ तो था कि ज़्यादा आरटीआई और ये इसके मिसयूज वगैरह से, मतलब ऑफिशियल्स, क्योंकि हमारी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ब्यूरोक्रेसी का एक मतलब एक क्या बोलते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट है, या ये है मीडियम है जो करता है, तो उसके लिए एक्सपेरिमेंटेशन की ज़रूरत रहती है और करेज की ज़रूरत रहती है। लेकिन क्योंकि आरटीआई अगर इस तरह से यूज़ किया जाए तो एक फियर बैठ जाता है उनके बीच में, तो वो बिल्कुल लेटर में ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो करते हैं, नॉट इन द स्पिरिट, क्योंकि वो फिर डिस्क्रिशनरी में आ जाता है और फिर उनके ऊपर क्वेश्चन लग सकता है। और आई थिंक फिर सोल्यूशन की तरफ हम ले सकते हैं कि इसके अंदर मतलब ऑलरेडी ये प्रोविजन है कि आप प्रोएक्टिवली इंफॉर्मेशन को शेयर करो। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप उसको लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करोगे, उतना ही ज़्यादा उसका फायदा जो है जनरल मासेस को मिलेगा। लेकिन इसमें थियरी में कैसे बताया, मतलब हाँ, फैक्ट्स में अपन शायद ये बता सकते हैं कि वो जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो ऑर्गेनाइज नहीं रहती है, ठीक है, तो वो भी एक दिक्कत पैदा करती है।
और हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, मतलब जैसे लेबर के बारे में भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी जब हमको चाहिए थी, और वो इतना सब नाटक हो रहा था। हाँ तो वो मतलब अलग ही इसमें था। ना फूको यूज कर सकते हैं क्या? नॉलेज पावर कनेक्शन बोला था आप, लोगों के पास नॉलेज होगी तभी उनके पास रियल पावर होगी। हाँ हाँ, वाओ। वही लग रहा है। दिस मस्त पॉइंट इज लाइन ऑफ द डे। है। और वही है, मतलब वैसे रिलेट करना चाहिए अपने को। ठीक है। और कुछ? तो कुछ नहीं आता रहा है इस पे, मतलब इसको देख के थोड़ा ना वो एथिक्स वाला फीलिंग ज्यादा आ रहा हाँ, है। बार 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 वही लग रहा है। ठीक है, तो और किसी के पास कोई पॉइंट अगर है तो बता दो, अदरवाइज बाद में ऐड कर देना अगर इस पे मिले तो। हम्म। कंक्लूड कैसे करेंगे? वही शायद जैसे बताया था कि खुद का ही डिस्क्लोजर करना चाहिए अपने को। प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर कर दो, आई थिंक उसी लाइंस पे सही रहेगा। चैलेंजेस को इजीली मेट आउट कर पाएंगे उसमें। या कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ आइडियल से रिलेट करके कुछ एंड कर सकते हैं अपन। स्ट्रेंथनिंग ओवरऑल डेमोक्रेसी और वेलफेयर स्टेट टाइप ऐसा कुछ वर्ड्स डाल सकते हैं लास्ट में। सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी। हाँ करेक्ट, सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी। तो अपने पास क्या क्या था, मतलब आर्टिकल 19 और 21 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको डाला। ओएस मतलब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और स्टेट वर्सेस ड्यूटी टू सिक्योरिटी वगैरह डाल दिया। फिर वही अकाउंटेबिलिटी और उसके लिए स्ट्रेंथनिंग करता है, डेमोक्रेसी का एक करेंसी मानते हैं इसको, इन्फॉर्मेशन को। डॉर्फिन और उसकी मतलब हेबरमास की आइडियल कंडीशन वाला डाल दिया, डेलिबरेटेड डेमोक्रेसी डाल दिया, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी स्ट्रेंथिंग भी डाल दिया। इसमें डिस्क्लोजर ऑफ द वो अपना इनकम वगैरह वो सब डाल सकते हैं, और उनके एजुकेशनल जो भी है तो उसमें डाल सकते हैं। एफिकेसी हमको पता चलती है, करप्शन को कंटेन करता है, स्टेट पॉलिसी स्कीम्स एलोकेशन प्रोक्योरमेंट जो होता है उसमें डाल सकते हैं। राजनारायण केस बताया कोई, और जयंतीलाल कोई केस बताया, उसमें बता सकते हैं। भोबड़े ने भी कुछ पॉलिसी पैरालिसिस के बारे में बताया। सेकेंड एआरसी का भी बता सकते हैं, कैसे वो जो ओएस है वो इम्पेडिमेंट है आरटीआई का रियलाइजेशन में के लिए। इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज नहीं है वगैरह वो सब डाल सकते हैं अपन। और वो सब है। और फिर बाद में फूको का नॉलेज पावर रिलेशन वो बता सकते हैं। जब नॉलेज आएगी सब चीज़ों के बारे में, तभी वो पावर का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, वो वाला शायद डाल सकते हैं। और उनके लिए फिर शायद हैना अरेंट को डाल सकते हैं कि उनके लिए पावर मतलब कोई ये नहीं है, कोवर्जन वाला यूज़ नहीं है, वो एम्पावरमेंट के लिए यूज़ होना चाहिए, जैसे अरेंट ने बोला है। तो नॉलेज से वो मिलेगा हमको ऐसा कुछ। और फिर आइडियल से कोई लिंक कर देंगे अपन। फिर वो मैकफर्सन का डेवलपमेंटल पावर भी आ जाएगा क्या? हाँ हाँ, वो हाँ उसी लाइन्स में ना। हाँ वो मतलब वो दो तीन पॉइंट एक जैसे ही हैं। हम्म, वो पावर 2 के लिए बोलते हैं ना। to do something। कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ पावर। हम्म, वही मेरे ख्याल से केसेस एक्सट्रैक्टिव वाले। हाँ। एक्सट्रैक्टिव और डेवलपमेंटल पावर था ना सीवी मैकफर्सन का आइडिया। हाँ हाँ, तो उसका वही था कि डेवलपमेंटल पावर बढ़ाना है, एक्सट्रैक्टिव कम करना है। करेक्ट करेक्ट। हाँ तो हाँ वो भी डाल सकते हैं, सही बोला। वैसे ये स्टार्ट एक इससे हुआ था ना, कोई एनजीओ या किसी एक आदमी ने बहुत एक्टिविज्म किया था और उसके लिए लड़ा था वही था, आरटीआई। वो बस एमकेएसएस था। वही था, एमकेएसएस था। MKSS था, अरुणा रॉय वाला। वैसे वो यूजुअली ऐसा देखा जाता है इंडिया में कि जो भी रिफॉर्म्स या जो भी चीज़ें आती है वो ऊपर से ही आती है। ये पहली चीज़ थी जो सोसाइटी ने क्लेम करने की कोशिश की, डिमांड की, और तब करेक्ट। हुआ है। तो ये हमारा दिखा भी रहा है कि हमारी जो कंडीशंस है और सोशल कॉन्शियसनेस जो है, सोशो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस कितना डेवलप हो चुका है। और ट्रांजिशन में दिख रहा है कि अब वो डिमांड करने लग गए रिफॉर्म के लिए, ऐसा कुछ।